Hello, my name is Tejas and you're watching HW News. With protests over the hijab ban in colleges appearing to spiral out of control, with incidents of stone pelting and lathi charge being reported from at least 4 districts, the Karnataka government scrambled to contain the controversy by declaring a 3-day holiday for all schools and colleges in the state. For the last few days, the southern state of Karnataka has been engulfed by demonstrations pro and anti-hijab by students that began after some colleges in Udupi district banned entry for Muslim women because they were wearing hijab. What began as a protest by Muslim women against the hijab restrictions has now snowballed into full-fledged polarizing campaign with other students in schools and colleges wearing and flaunting saffron scarves and shawls to oppose the hijab and raising slogans of Jai Shri Ram. The protest continued to intensify even when the Karnataka High Court was hearing the petition filed by 5 Muslim women against the hijab restrictions. After incidents of stone pelting and some students hoisting a saffron flag in one of the schools of Shivamogga, the Chief Minister took the cognizance of the controversy and appealed for peace and harmony. He said he has ordered all schools and colleges to be shut for next 3 days. At the same time, opposition leaders slammed the BJP government in Karnataka for allowing the issue to spiral out of hand and watching silently as the Muslim women were subjected to intimidation and harassment. AIMIM chief Asaduddin Owaisi slammed the BJP over the controversy and said the Saffron Party is violating the Article 15, Article 19 and Article 21 of the Constitution. अभी आप देखेंगे शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की। जाहिल लोग, पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाहते हैं ना। Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra took to Twitter and demanded to stop the harassment of women. Priyanka Gandhi Vadra on her Twitter handle wrote, "Whether it is a bikini, a ghungat, a pair of jeans or a hijab, it is a woman's right to decide what she wants to wear. This right is guaranteed by the Indian Constitution. Stop harassing women." Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi also targeted the Bharatiya Janata Party over this controversy and said that the Saffron Party is now using school-going kids to do petty politics. नफरत का प्रतीक है जो इस केंद्र सरकार ने बाकायदा 2014 से फैलाया है। ऐसे लोगों पे एक्शन ना लेकर राजनीति हर धर्म की बातों में घुसाकर, हर इंस्टीट्यूशंस में घुसाकर आप लोगों ने आज बच्चों तक का इस्तेमाल कर ये ध्रुवीकरण किया है। कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा वीडियो देखने के बाद किसी तरीके की ग्लानि महसूस होगा ऐसी सरकार को जिन्होंने सिर्फ धर्म पे अपनी राजनीति की है और वोट बटोरा है, लोगों का बंटवारा कर करके वोट बटोरा है। और दुर्भाग्य की बात एक और है कि एक पुरुष सैफरन शॉल पहनकर, एक महिला, जो हमारा हिंदू धर्म हमें कहता है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो अब ना हिंदुत्व के प्रतीक है ना हिंदुइज्म के प्रतीक है। Responding to the allegations raised by opposition, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya said that the Congress party was behind this entire controversy and the grand old party was deliberately giving rise to such controversy. Congress is not going to get any benefit by doing this. People of Uttar Pradesh know everything, Mr. Maurya said. BJP MP Giriraj Singh, taking the offensive a notch above, said that the Congress party wants to turn India into an Islamic state. ये देश का दुर्भाग्य
यही हालात आज से कई वर्ष पहले अफगानिस्तान में शुरू हुआ। आज लोग जिस तरह के माहौल बना रहे हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं, बच्चियों को बरगला रहे हैं, ये गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले लोग साजिश कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। स्कूल के अंदर में कोई बच्चा नमाज पढ़ने जा रहा है, उसे बहका रहे हैं। बच्चियां हिजाब पहन रही हैं, उन्हें भी बहका रहे हैं। तो आने वाले दिन में मैं इतना ही कह रहा हूं कि भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो कल्पना कभी 1920 से लेकर के 46-47 में जो घटनाएं घटी, वो गजवाए हिंद की कल्पना करके भारत को इस्लामिक स्टेट और उन बच्चों के साथ इमोशनल उन बच्चों को साथ किया जा रहा है। तुम ये करो, कल वो करो। ये बच्चे भी उनके पीछे जा रहे हैं। मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, इनके चक्कर में नहीं आओ। याद करो उन देशों को जहां पर जिस ढंग से दबाव डाला जा रहा है इस्लामिक स्टेट के लिए, वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये भारत है। इसे पाकिस्तान सीरिया नहीं बनने। कांग्रेस तो जिंदगी भर इसी की खेती की है। कांग्रेस धर्म आधारित तुष्टीकरण की खेती की है। इसीलिए तो मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश की संपदा पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, उन्होंने नहीं कहा कि गरीबों का। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की खेती है और कांग्रेस उसी खेती को बढ़ा रहा है। Madhya Pradesh Education Minister Inder Singh Parmar, who had yesterday suggested that hijab be banned in schools, now changed his tune and withdrew his statement after the outrage. निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूंगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटी आए तो ही अच्छा होगा। अनुशासन तभी पालन हो सकेगा। हिजाब पहनकर आती है तो पाबंदी लगाई जाएगी। भाई देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में लगेगी? बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। कई स्कूल ऐसे कि बच्चे तो आती हैं। ये अभी देखेंगे, उसका एक बार परीक्षण करा के देखेंगे और यदि ऐसा है तो उसका हम भी कार्रवाई करेंगे। ठीक। कल मेरे द्वारा स्कूलों में गणवेश को लेकर के बयान जारी किया गया था। मेरा बयान स्कूलों में समानता, अनुशासन और स्कूल की पहचान के संदर्भ में था और इसलिए यूनिफॉर्म कोड लागू करने का विषय मैंने बोला था। परंतु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्भ में पूरे देश के सामने विषय रखा है। मैं उसका खंडन करता हूं। फिलहाल हम नया यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करेंगे, ना उस पर हमारा कोई काम हो रहा है। परंपरागत रूप से जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी व्यवस्था ही। Meanwhile, a decision on whether schools and colleges can order Muslim girls to not wear hijabs in class was passed on to a larger bench by the Karnataka High Court on Wednesday. These matters give rise to certain constitutional questions of seminal importance in view of certain aspects of personal law, the judge hearing the case said, referring it to a panel of judges to be led by the Chief Justice of the Karnataka High Court, Rituraj Avasthi. In view of the enormity of questions of importance which were debated, the court is of the considered opinion that the Chief Justice should decide if a larger bench can be constituted in the subject matter, Justice Krishna S. Dikshit said.